Myself Upasna. I'm in third year and today I'm going to share my coding journey which made me got selected in on-campus opportunity internship at SAP. So let's start. So I started doing DSA and development in my second semester. Like I used to do both of them together. I used to do DSA in the weekdays, then in the weekend 6 to 7 hours DSA, and then rest of the time I develop the projects. And yes, projects helps a lot in your selection. Like it depends on what type of projects you have made. Like my project, you all know IGDT resource. It is a live project. So making a live project and making a copy pasted project, they both are different. Okay, so we'll follow this roadmap. Like introduction is done. Eligibility in SAP is I don't remember exactly the CGP criteria, but most probably it was 8 or 7.5 greater. Okay, so next we'll cover resources. Then I got a comment in YouTube like how to approach a problem, how to find its intuition, all those. Then we'll move on to tips for resume. I'll show my resume how you will make it, and also tell some famous YouTube channels like जो नोन है उससे अलावा जो विजुअल्स होते हैं या फिर जो एनिमेटेड डीएसए पढ़ाते हैं उनके लिए. ओके, then interview preparation, and then the resources for preparing for the interviews, and then the do's and don'ts you are required to follow in your preparation journey. Okay, so let's start talking about the resources. So, resources for placements and internships. Firstly, you need to learn the basics of the language, be it Java, C++, or Python. So, while learning the language, you need to do the basics like loops, flowcharts, loops like for loop, while loop. You need to do everything in the loops, flowcharts, calculating time and space complexity, big O notation, and then doing the basics like bit manipulation. Okay, then you need to switch to the DSA. Like take the easy topics like array, stacks, queues, linked list, and then some sorting algorithms like recursion, searching, sorting. Okay. Also, while in the interviews, you need to tell the interviewer before asking them like what is the time complexity of the code you are writing. So you need to keep in mind what is the time complexity and space complexity of the code that you have writing. Okay. Okay, so famous YouTube channels, just write please. एक है विलियम फेसेट. ओके, like they have data structures playlist in the visual form, animated form. And second, if you need to do DSA in C++, then there is Code Help by Love Babbar Bhaiya. Pep coding for Java, and for algorithms. Like आपके फोर्थ सेमेस्टर में भी सब्जेक्ट होगा डा डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स. सो उसके लिए भी अब्दुल बारी का जो चैनल है वो मोर देन इनफ है. ओके, also for the algorithms, you need to learn time complexity and space complexity by heart. I personally did a course from Apna College and they taught DSA in Java and it's a nice one. On which platforms you need to do like lead code, how to solve the problems like firstly you have studied array. So go to the easy level questions, start doing them. Once you are able to solve easy questions, bring yourself out of your comfort zone and start with the medium level questions. Don't do 100 easy questions. If you are able to solve 50 easy questions and the 100 easy next questions are in the same pattern, so don't do next 50. Don't increase the count of the questions, increase your thinking ability. Okay, and generally in the interviews medium level questions are asked, and also it depends on the company and the role for you which you are applying. आप एक शीट फॉलो कर सकते हो स्ट्राइवर की, ए टू जेड है या लव बब्बर भैया की जो है, या फिर अपना कॉलेज की भी है, या फराज जो है मोहम्मद फराज उनकी भी है. आप कोई भी फॉलो कर सकते हो. Next is how to solve a question or how to approach a new problem. It's intuition. Firstly, take time to understand it. See the question. Take the time. Understand it. Write it in the notebook. Understand it what it is saying. Go thoroughly through the input and output patterns it is expecting. Do the brute force solution and then try to optimize it. Firstly, you need to do the brute force solution and then try to optimize it. Uh,
Also in the interviews, like you know the question, you have done it in the lead on the lead code, but don't show the interviewer that you know the question. You need to tell them the brute force solution, so because they are checking your thinking ability na, your problem solving ability. शीट सी प्लस प्लस में होने से कुछ नहीं होता। वो क्वेश्चन से तो दिए हुए हैं आपको, जस्ट उसका जावा वाला सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन तो सी प्लस प्लस या जावा के उस पे नहीं होता ना कि ये क्वेश्चन सी प्लस प्लस वालों के लिए, ये क्वेश्चन जावा वालों के लिए है। वो 450 क्वेश्चंस की जो शीट होती है वो दोनों के लिए होती है। इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मेरे 2 इंटरव्यू, 2 टेक्निकल थे और 1 एचआर इंटरव्यू था। बोथ ऑफ देम वर एलिमिनेटरी। It was online. I was given virtual code editor to write the code, and this I have already tell, like if you are aware of the solution, don't just tell them. Okay, think wisely, tell them wisely, tell them firstly the brute force solution, एंड डोंट टेक लॉन्ग पोजेस इन द इंटरव्यू। ओके, आपने पहले वीडियोस में भी देखा होगा ये कि इंटरव्यू में पोज बिल्कुल मत लेना, आपको डिस्कस करते रहना है उनसे। आपको जो भी आ रहा है माइंड में, लाइक उसका जो भी सॉल्यूशन आ रहा है, आपको कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, उसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करोगे, ये सब आपको उसमें बताना होगा इंटरव्यूअर को। ओके, और इंटरव्यू में आपके कोर सब्जेक्ट्स भी आते हैं, लाइक ऊप्स, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क थोड़ा बहुत आ जाता है, लाइक कंपनी स्पेसिफिक होता है, पर थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। और डीबीएमएस, ऊप्स और ओएस ये तो मस्ट है करने, इनके बिना तो इंटरव्यू में मत जाना बिल्कुल भी। डीबीएमएस के लिए यू कैन वॉच प्लेलिस्ट बाय कोड हेल्प बाय लव बबर भैया, वो बेस्ट है। और मैं उनका एक पीडीएफ का लिंक दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, वो भी चेक करना। वो पीडीएफ एकदम बेस्ट है थ्योरी के लिए, थ्योरी पार्ट कवर करने के लिए। ओके, एंड जीएफजी से भी आप उनके आर्टिकल्स रीड कर सकते हो, बहुत अच्छे से समझा रखा है जीएफजी पे भी, गीक्स फॉर गीक्स पे। इंटरव्यू रिसोर्सेज के लिए आई विल ऐड अ पीडीएफ लिंक, एचआर इंटरव्यू वाला। एंड मैंने तो मॉक इंटरव्यू नहीं दिए एक भी, बट इट्स प्रेफर टू गिव द मॉक इंटरव्यूज एज यू गेट द आइडिया हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, योर सोल्यूशन, एंड हेजिटेशन हट जाती है एक। ओके, आप मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस, एक तो टेकिंग कंट्रोल एक है कम्युनिटी आईजीडीटीयू की, आप वहाँ पे देख सकते हो, मैं उनका लिंक भी ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। एंड इंटरव्यू बेट, वहाँ पे भी आप मॉक इंटरव्यूज वगैरह देख सकते हो, उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। ऑल्सो स्केलर, स्केलर पे भी काफ़ी अच्छे इंटरव्यूज आपको मिल जाते हैं। देन मेरे इंटरव्यू में क्या हुआ था, लाइक उन्होंने रिज्यूमे ओपन करा हुआ था साइड बाय साइड। ओके, उनके पास रिज्यूमे ओपन था, तो उन्होंने सबसे पहले मेरी वेबसाइट देखी, तो देवर लाइक कि क्या वेबसाइट है, क्यों बनाई। आई एक्सप्लेन दैम होल प्रोसेस, एंड लिटरली उन्होंने पर्सनली वो जैसे वहाँ पे जो मीटिंग में चैट सेक्शन होता है वहाँ पे लिंक मांगी कि लाओ गिव अस दी वेबसाइट लिंक एंड वील चेक। उन्होंने पूरी वेबसाइट देखी, देन दे आस्क हाउ यू मेड, HTML CSS के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। तो जो भी आप स्किल्स ऐड करोगे अपनी टेक्निकल स्किल्स, उनके बारे में आपको आनी भी चाहिए। ये नहीं कि आपने रिएक्ट लिख दिया, आपने नोड जीएस लिख दिया, मोंगोडीबी लिख दिया और आता कुछ भी नहीं है उसमें, वहाँ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आपका। ओके, एंड सेकेंड इंटरव्यू में मुझसे मेरी स्टार्टिंग हुई थी ऊप्स के क्वेश्चन से। तो वही बात है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। उन्होंने मतलब जो उन्होंने ऊप्स के क्वेश्चन पूछे, ऊप्स मेरा बहुत अच्छा है तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा उन्हें, एंड दे वर वेरी इम्प्रेस्ड। सच्ची में आईजीडीटी रिसोर्स जो मेरा प्रोजेक्ट है, तुम बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने जब ये देखा ना कि उनके 13K+ क्लिक्स हैं, जो गूगल का मैंने जीमेल का जो हमने वो आईजी वो इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करा था कि ये हमारे 13K+ क्लिक्स है, मैंने वो रिज्यूमे में ऐड करा हुआ है। एंड दे आर सो मच हैप्पी कि लाइव प्रोजेक्ट है, एंड उसका जो एम है वो यही है कि स्टूडेंट्स को हेल्प करना। तो एक लाइव प्रोजेक्ट बनाना, एक बहुत यूनिक प्रोजेक्ट बनाना, एंड उसका कोई हेल्पिंग नेचर हो गया या उसका एम कुछ अच्छा होना, वो बहुत अच्छा रिज्यूमे बनाता है। देन कमिंग टू, हाँ एक चीज़ और, ये कंपल्सरी नहीं है कि आप वेब डेम बनाओ, आप बैकएंड में बनाओ या फ्रंट एंड में बनाओ, बट बैकएंड ऐड कर लोगे तो आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा हो जाएगा दूसरों से। क्योंकि
मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं करते हैं बैक एंड, मोस्ट ऑफ द बच्चे फ्रंट एंड में ही रहते हैं। तो आप बैक एंड करोगे या आप कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करोगे, तो वो आपको ही बेनिफिट देगा। ओके, आप एमएल पे भी बना सकते हो, आप ऐप डेवलपमेंट पे बना सकते हो, आप किसी पे भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। थोड़ा यूनिक बनाओ, टिक टैक टो वगैरह मत ऐड करो। और कोई पार्टिसिपेशन है, तुमने हार्वर्ड की वो कॉन्फ्रेंस ऐड करी, वो वाली चीज़ें मत ऐड करना रेज्यूमे में प्लीज़। कैन वी मूव ऑन टू डूज एंड डोंट्स, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो? सबसे बड़ी बात तो यही कि डोंट लाई इन योर रिज्यूमे। ओके, लाइक मैंने बताया कि उन्होंने मुझसे एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट सबके कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। तो जो आपने स्किल्स लिखी होंगी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड बी ऑनेस्ट एंड ट्रू टू योर सेल्फ। लाइक हाँ, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ऐसे उनका मतलब ऐसे टाइम मत कर वो करो कि आप सोच रहे हो आपने 5 मिनट्स वेस्ट कर दी। नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको पहले ही पता है कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो उन्हें तभी बता दो कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द आंसर राइट नाउ एंड आई विल चेक आफ्टर द इंटरव्यू। सेइंग नो इज नॉट अ बैड थिंग। ओके, एंड ये भी मैंने बता दिया कि ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करना, देन ऑप्टिमाइज पे जाना, डायरेक्टली ऑप्टिमाइज पे जंप मत करना। प्रोजेक्ट्स का मैंने बता दिया है आपको कि लाइव प्रोजेक्ट बनाओगे या कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाओगे जो एक बड़ी कम्युनिटी को हेल्प कर रहा है या जिसका एम कुछ अच्छा है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रोजेक्ट्स आपके बहुत हेल्प करते हैं। आपका रिज्यूमे एट द एंड कोई ना कोई तो देखेगा, इंटरव्यूअर या एचआर, दोनों आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑल्सो एचआर इंटरव्यू के लिए जो आपके क्वेश्चन होते हैं, माई स्ट्रेंथ, माई वीकनेस, या फिर वट चैलेंजेस यू फेस्ड इन योर प्रोजेक्ट्स, या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव मैंशनड इन योर रिज्यूमे, दे विल गिव अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन एंड देन दे विल आस्क व्हाट यू विल डू। सो इन सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस पहले से रेडी करके रखना अपने